پاک کلام میں سے آج ہم جس بات پر غور کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کام کرنا عبادت کس طرح بن جاتا ہے. کام کرنا عبادت کس طرح بن سکتا ہے. اب یہ جو آیات آپ سب کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات کا بڑا غلط سا مطلب نکالا جاتا ہے کہ جب خدا نے آدم سے یہ کہا کہ تو مشقت کے ساتھ عمر بھر اب اس کی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، اور زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنا جو ہے، یہ جو محنت مشقت انسان کے ذمہ لگی ہوئی ہے، کام کرنا جو ہے یہ ایک لعنت ہے. ان آیات کی تفسیر یا تشریح جو ہے کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بھی کہتے ہیں. جو میں بات ابھی کرنے والا ہوں وہ میں بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ واقعی میں لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے یا کہ نہیں. اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نہ آدم گناہ کرتا اور نہ ہمیں اس طرح کی محنت مشقت کرنی پڑتی. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا اس بات پہ وہ یقین کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں اس کو اس طرح سے کہ آدم نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو سزا ملی کہ تو مشقت کے ساتھ اپنی روٹی کھائے گا. تو یہ محنت مشقت کرنا جو ہے یہ ایک سزا ہے. تو کیا خیال ہے کہ محنت مشقت کرنا سزا ہے؟ بائبل مقدس نہیں بتاتی کہ سزا ہے. خداوند کے مقدس کلام کے مطابق اس کا آسان سا مطلب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح ہر ایک چیز جو بنائی جاتی ہے اس کا ایک کوئی نہ کوئی ایک فنکشن بنایا جاتا ہے. اگر وہ چیز اپنے اس فنکشن کے لیے بھی استعمال نہ کی جائے تو وہ بڑی بڑی ہی خراب ہو جاتی ہے. یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چیز کو استعمال کریں تو وہ خراب ہوتی ہے. تو ایک چیز بالکل نئی لا کے رکھ دیں لیکن اگر وہ اس کو استعمال میں نہ لائیں تو بھی وہ خراب ہو جاتی ہے. تو سیم اسی طرح سے یہ جو انسان کی باڈی ہے، اس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے بھی کئی فنکشن جو ہیں وہ خدا نے رکھے ہوئے ہیں. اگر اس باڈی کو بھی ہم لوگ استعمال میں نہ لائیں تو یہ بھی بڑی کیا ہو جائے گا، اس کو بھی زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. 10 دن جو ہے وہ بالکل آپ کا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ کام کرنے سے مجھے موت پڑتی ہے، کام کرنا جو ہے وہ میرے لیے بڑا مشکل ہے یا سزا ہے، اگر وہ سزا سمجھ رہا ہے تو خدا کرے کہ بندہ اس کو 10 دن کی چھٹی دے اور بولے کہ بالکل چارپائی سے ہلنا نہیں. اس کے بعد 10 دن کے بعد اس کی حالت دیکھ لیجئے گا کہ چارپائی پہ پڑے پڑے اس کا بنتا کیا ہے. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی چلتے پھرتے رہیے تھے صحیح رہنے. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کام کاج کرتے رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں. کام کاج کرنا ہی انسان کی صحت ہے. ایک طرف لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو سزا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں کام کاج کرنا ہی صحت ہے. اور بائبل مقدس سے اگر ہم لوگ تصدیق کرتے ہیں تو بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اگر کام کاج کرنا سزا ہے، کام کاج کرنا یا محنت مشقت کرنا اگر لعنت ہے، تو بائبل مقدس کے مطابق یہ مشقت تو خدا نے پہلے بھی آدم کو دی. گناہ کرنے سے پہلے خدا نے کہا، پیدائش کی کتاب یہاں پر 2 چیپٹر ہے اور یہاں پر اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اچھا، مختصر کرتے ہیں آگے. خداوند کے پاک کلام میں 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. یہ کیا ہے؟ یہ محنت و مشقت نہیں ہو رہی وہاں پہ، ابھی تو گناہ بھی نہیں ہوا. تو اصل میں یہ جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں جن کی مرکزی تلاوت کی گئی ہے، ان کے روحانی معنی ہے.
इनको ना हम कामकाज के साथ जोड़ सकते हैं, ना मेहनत मशक्कत के साथ जोड़ सकते हैं। इनका मामला ही बिल्कुल फ़र्क है। तो जिन लोगों को ना याद की इस चैप्टर की समझ नहीं आती, वो मनगढ़ंत तफसीरें बना के, आगे लोग भी बेचारे वैसे ही होते हैं और वो भी हाँ में हाँ जो है वो मिला देते हैं कि ठीक है जी ठीक है। और कुछ लोग तो इस तरह के भी मैंने देखे हैं कि वो रत्ती भर भी जहमत गवारा नहीं करते कि पादरी साहब से बाद में पूछ ही लें कि पादरी साहब ये जो आपने तफसीर की है या ये जो मतलब आपने समझाया है, हमारे को पल्ले नहीं बात पड़ी, को बात समझ में नहीं आई। एक खादम से हमने सुना था उसने ये तफसीर की थी, आप इसकी ये तफसीर कर रहे हैं, इतनी जहमत भी गवारा नहीं करते। और कुछ लोग तो वैसे ही ड्यूटी पे आए होते हैं टाइम पास करने के लिए, तो बस आंखें बंद करके कलाम सुनना और जो भी पादरी साहब सुना दिया बाद में है हमारे बाप पढ़ी और घर चले, तू कौन मैं कौन, बस ड्यूटी थी हाजिरी थी लगवा ली। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज हम लोग बात करने वाले हैं कि काम करना इबादत किस तरह बन सकता है। बात समझ में आ गई? काम करना इबादत किस तरह बन सकता है। तो आपको मैं एक बड़ी खास और अहम बात बताने लगा हूं। एक चरखा काटने वाली थी, उसने चरखा काटते हुए खुदा को ढूंढ लिया। उसका काम क्या था? चरखा काटना। और जब वो चरखा काट रही थी तो एक बड़ा आलम बंदा जो है वो उस बुजुर्गा के पास आया और आकर क्या कहता है कि अम्मा जी सारी जिंदगी चरखा ही चलाया है, सारी जिंदगी चरखा ही कते है कि कोई रब दी भी कोई खैर खबर है। तो वो कहने लगी पुत्र की पूछना रब के बारे कोई रब भी लभ्या कि नहीं? उन्हें कहा मैं रब लभ के बैठी हूं। काम करना इबादत किस तरह बन जाता है कि जो भी हम लोग काम करते हैं उसी काम में से अगर हम लोग खुदा को तलाश कर ले तो वो काम करना भी हमारे लिए इबादत बन जाता है। अब उस बुढ़िया ने, उस बुजुर्गा माँ ने चरखा काटते हुए किस तरह से खुदा को पा लिया या किस तरह से खुदा को उसने ढूंढ लिया अपने काम में से ही। उसने कैसे खुदा की इबादत की या कैसे खुदा की बंदगी की और उसने खुदा को हासिल कर लिया। अब जब वो आलम बंदा जो है वो उस बुजुर्गा माँ से कहता है कि मुझे बताएं कि फिर ये मामला कैसे हुआ है। उसने कहा ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हुआ है। ये देखिए चरखा जो है ये मैं काटती हूँ ना, तो जिस तरह ये चरखा चलता है उसी तरह से ये पूरी कायनात का निज़ाम जो है ये भी एक चरखे की तरह ही चल रहा है। ये निज़ाम भी सारा एक चरखे की तरह ही चल रहा है। तो अब इस चरखे को चलाने वाली तो मैं यहां पर बैठी हूं। अगर मैं यहां से उठ जाऊं तो चरखा रुक जाता है। अगर मैं यहां से रत्ती बार भी इधर उधर हो जाऊं या एक सेकंड के लिए भी अपना हाथ जैसे इधर कर लूं तो चरखा चलना रुक जाता है। तो ये जो सदियों से, इतने हजारों सालों से ये निज़ामे कायनात चल रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई है तो ये चल रहा है। पहली चीज तो उसने ये सीखी। और उसके बाद सबसे बड़ी और अहम बात जो है उसने फिर दूसरी बात बताई कि दूसरी बात जो मैंने सीखी जिससे मुझे खुदा की तलाश शुरू की मैंने और मैंने खुदा को पा लिया। दूसरी बात ये है कि जिस तरह इस चरखे को चलाने वाली सिर्फ अकेली मैं हूं, अगर दूसरी कोई औरत मेरे साथ होती तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। तो ये जो हजारों सालों से निज़ामे कायनात चलता हुआ आ रहा है और रत्ती भर भी इसमें कभी कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुई, तो उससे मैंने जान लिया कि इसको चलाने वाला भी एक ही है। हालेलुया। 2 या 3 या 4 नहीं है, एक ही है। तो अब उसका काम करना जो है वही उसके लिए क्या बन गया? इबादत बन गया, क्योंकि उसने उसी काम में से खुदा को तलाश कर लिया। आज हम लोग अपना कारोबार करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन काम को सिर्फ काम समझते हैं। काम करना इबादत हमारे लिए उस वक्त बनता है जब हम उस काम में से भी खुदा की तलाश कर लेते हैं। जिस तरह के कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। आज तक तूने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें से खुदा की पहचान हासिल कर कि खुदा तुझे इसमें से कैसे मिल सकता है।
चाहे कोई दुनियावी कारोबार कर रहा है, चाहे कोई रूहानी कारोबार कर रहा है, जो कुछ भी हासिल किया है अब तक अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल करिए। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, तो जो कुछ भी अब तक हासिल किया है उसमें से हमें क्या करना है, खुदा को पहचानना है। फिर हर वो काम, हर वो बात जो है वो हमारी बंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हमारा चलना फिरना जो है वो भी इबादत बन जाएगा। अगर हम अपने चलने फिरने में खुदा को पहचान लें, अगर हम अपने देखने में, अपने बोलने में या अपने सुनने में खुदा को पहचान लेते हैं, तो फिर हमारा देखना, बोलना, सुनना, चलना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना सब कुछ ही हमारी इबादत बन जाएगा। तो काम करना किस तरह इबादत बनता है, इसी तरह बनता है। तो बाज़-औक़ात बंदा जब निचले दर्जे पे होता है, ये मार्फत की बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, जब तक इंसान साग पात खाने वाला होता है वो ये समझता है कि राती 3 बजे उठ के ने किते दुआ करनी है तो फिर पता लगना है कि रब दा बंदा है। तो अभी वो बंदा जो अभी निचले दर्जे पे है, या जो मसीह में अभी बच्चा है, या अभी साग पात खाने वाला, वो पादरी साहब का हिसाब लान लग पाता कि दुआ किहड़े वेले कर देन, तुहाडी दुआ पादरी साहब दुआ तुसीं किहड़े वेले करदे हो, साडी तो रूटीन बनी, असीं इस टाइम भी करनी, असीं इस टाइम भी करनी, असीं इस टाइम भी करनी, तुसीं किहड़े वेले दुआ करदे हो। वो अपना हिसाब लान लग पैंदा कि मैं ते 7 बार दिन च दुआ करना, एक बार भी नहीं दुआ करदे। तो बात ये नहीं है। अब उनका लेवल कौन सा है, आपका लेवल कौन सा है, उस लेवल का मसला बनता है। फिर तो काम करना इबादत किस तरह बन जाता है, जब अपने हर काम में आप खुदा को पहचानना शुरू करते हैं। अब 2 लफ्ज़ है, ये जो है ना, ये पास्टर साहबान नहीं इन लफ्ज़ों को छेड़ देना, इन पे बात करते हैं। एक लफ्ज़ होता है मुजाहिदा, एक लफ्ज़ होता है मुशाहिदा। अब मुजाहिदा क्या है, मुशाहिदा क्या है, इसकी डिटेल अगर मैं बताना शुरू करूँ तो बड़ा लंबा काम चला जाएगा। तो मुजाहिदे से फिर जब बंदा जंप करता है फिर मुशाहिदे पे चला जाता है, जब मुशाहिदे पे चला जाता है तो फिर उसका हर काम इबादत बना होता है। समझ आ गई मेरी बात। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक उस बुढ़िया औरत ने चरखा काटते हुए किस तरह से खुदा को ढूंढ लिया, और सारी ज़िंदगी जो है वो हम खुदा की तलाश में गुजार देते हैं, लेकिन रब लापता नहीं। उसकी वजह क्योंकि मामला ही ठीक नहीं। पिछले दिनों मैं बात कर रहा था कि दुआ में तसीर तलब से पैदा होती है, दुआ में तसीर तलब से पैदा होती है। जिस कदर तलब होगी उस कदर दुआ में तसीर होगी, और जिस कदर दुआ में तसीर होगी उतनी ही तेजी से वो बारगाह इलाही में पहुंचेगी, और जितनी तेजी से वो बारगाह इलाही में पहुंचेगी उससे कहीं ज्यादा जल्दी जो है वो माल के हकीकी खाल के कायनात जो है वो उसको कबूल फरमा के अपनी बारगाह इलाही से हुक्म सादर फरमाएगा, और जवाब इलाही हमारे पास पहुंच जाएगा। वो किसी भी सूरत में हो सकता है जो कि दुआ हम कर रहे होते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इन चीज़ों पर सोचना और गौर करना हमारे लिए ज़रूरी है। आज का ये छोटा सा पैगाम है कि काम करना जो है वो इबादत किस तरह बन सकता है। तो ये मैंने साथ ये भी बात आपको बताई है कि काम करना, मेहनत मशक्क़त करना जो है ये कोई लानत या सज़ा नहीं है, ये इंसान की बॉडी के फंक्शन है और खुदा ने रखे हुए हैं। जब तक हम इनको पाया तकमील में नहीं लेके आएंगे तब तक जो है वो ये बॉडी भी सेहतमंद नहीं रह सकती। तो बल्कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि काम काज जो है ये खुदा की तरफ से एक बरकत है, एक ब्लेसिंग है। जब किसी का कारोबार सही चल रहा हो, जब अच्छा बड़ी मज़े की बात है, जब कारोबार ना चल रहा हो या मर के काम करना पड़े तो फिर ये कारोबार क्या है, फिर काम काज या मेहनत मशक्कत सजा है। जदों कारोबार अरूज पे चला जाए तो फिर कहना बाजिया खुदावंद दी साडे उत्ते की है, बड़ी रहमत है, खुदा दी बरकत है। हुण कारोबार बरकत ते जदों तकलीफ ना करना पिया सी उदों सजा है। अजीब गल है भाई। तो सोचने वाली बात है कि ये इंसान का ज़हन जाता किस तरफ है। तो किसी हाल में भी बंदा खुश नहीं रहता। तो जब तक हम खुदा के इन मामलात को रूहानी तौर पे समझ नहीं पाते, बंदे की समझ में कोई बात आने वाली नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये 4-5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कि कारोबार करना, मेहनत मशक्कत करना जो है ये ना सज़ा है ना ये लानत है, बल्कि ये इंसानी बॉडी के फंक्शन है, और दूसरे नंबर पे खुदा की तरफ से ये एक
बरकत है। और सबसे आखिर में जो आज का खास हमारा टॉपिक था कि काम करना इबादत किस तरह बन सकता है, वो डिटेल मैंने पहले आपको सारी समझा दी है कि अगर हम अपने हर काम में खुदा को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो फिर वो हमारा काम करना, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, ओढ़ना बिछौना, खाना पीना, हर चीज़ जो है वो हमारी बंदगी में शामिल हो सकती है। हालेलुया। सो खुदा हम सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।